Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all doing well, healthy and safe at your homes. और हम जो है हमने जॉन डन का इंट्रोडक्शन देख लिया है. अगर आपको मेरा मैंने जो वीडियो बनाया है जॉन डन के इंट्रोडक्शन पे, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा. आज हम जॉन डन की पोम जो है वो देखेंगे, द कैननाइजेशन. ओके, कैननाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोम है जॉन डन की. बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है और बहुत ब्यूटिफुल पोम भी है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोम. क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है वो हम देखेंगे इस पोम का, इस लेक्चर के अंदर. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिसाइट द पोम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और शाइड माई palsy or my gout, my 5 grey hairs or ruined fortune flout. With wealth your state, your mind with arts improve. Take you a course, get you a place, observe his honor or his grace, or the king's real or his stamped face. Contemplate what you will approve, so you will let me love. ये था फर्स्ट स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा देखते हैं. Alas, alas, who's injured by my love? What merchant ships have my sighs drowned? Who says my tears have overflowed his ground? When did my courts a forward spring remove? When did the heats which my veins fill add one more to the plaguey bill? Soldiers find wars and lawyers find out still litigious men, which quarrels move, though she and I do love. Now third stanza. Call us what you will, we are made such by love. Call her one, me another fly. We are tapers too, and at our own cost die. And we in us find the eagle and the dove. The phoenix riddle hath more wit. By us, we two being one, are it. So, to one neutral thing, both sexes fit. We die and rise the same and prove mysterious by this love. We can die by it if not live by love. ये है next stanza. ये we can die by it if not live by love, and if unfit for tombs and hearse our legend be, it will be fit for verse. And if no piece of chronicle we prove, we'll build in sonnets pretty rooms. As well a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half-acre tombs. And by these hymns all shall approve us canonized for love. Now the last stanza. And thus invoke us, you whom reverend love made one another's hermitage, you to whom love was peace that now is rage, who did the whole world's soul contract and drove into the glasses of your eyes, so made such mirrors and such spies that they did all you to epitomize. Countries, towns, courts, beg from above a pattern of your love. So this is the poem Canonization. Now we'll have a look on its critical appreciation of the poem. So the poem The Canonization was published in 1633. 1633 में पब्लिश हुई थी. पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए. और इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, जो फर्स्ट एडिशन आया था इनका सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स करके, उसमें पब्लिश हुई थी. द वर्ड कैननाइजेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन इनटू अ सेंट इन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन. कैननाइजेशन वर्ड का मीनिंग मैं दोबारा बता देती हूँ. द वर्ड कैननाइजेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन इनटू अ सेंट इन कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन. This title suggests that the poet and his beloved will become saints of love in the future. Okay,
and they will be regarded as saints of true love in the whole world for the future generation. Okay, so now let's begin with the first stanza of the poem. फर्स्ट स्टैंजा जो है पोम का, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ये है. द पोएट एड्रेसेस दिस पोम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. दिस पोम हैज अ एब्रप्ट ओपनिंग. एब्रप्ट ओपनिंग है वो तो हमने देख ही लिया है, पोम रीड की थी जब. द पोएट सीम्स टू आंसरिंग समबडी हु इज रिडिक्यूलिंग हिम फॉर बीइंग इन लव. द पोएट सेज दैट फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. Then he says, or make fun of my palsy, or my gout, my 5 gray hairs, or my ruined future. Sorry, my ruined fortune. Okay. He suggests the addressee to take care of his wealth and ask him improve his mind with arts. Further, the poet asks him to get himself devoted to God, and he should of his position, he should take care of his position, or even he should become loyal to one to the kings, or he should go and make money so that he can engross himself and let the poet love. वो इतने सारे सॉल्यूशंस बता रहे कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बस आप मुझे तो है ना, मुझे लव करने दीजिए, वो ये बोल रहा है. ठीक है. और इन द सेकेंड स्टैंजा देखते हैं. सेकेंड स्टैंजा में, इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट पुट्स अ नंबर ऑफ रेटोरिकल क्वेश्चंस. बहुत सारे रेटोरिकल क्वेश्चंस जो है वो पुट करते हैं. एंड सेज दैट अलास हु इज इंजर्ड बाय माई इनोसेंट एंड प्योर लव. कौन इंजर हो गया है मेरे इनोसेंट और प्योर लव से? Thus his love has not injured anybody. His sighs have not drowned the merchant ships. Okay. Further, he says his tears have not brought floods on the earth. His solitude or cold have not removed the springs, and the heat of his veins has not added to the list of those killed by the plague. वो बता रहा है कि मेरे लव करने से ना ये हुआ है, ना वो हुआ है, ना मर्चेंट्स की शिप डूबी है, ना पेशेंट्स जो है प्लेग के वो बड़े हैं. ये वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि ये सब चीजें जो है मेरे लव करने से या मेरे टीयर्स से कुछ नहीं हुआ है. ओके. क्योंकि मेरा लव तो बहुत इनोसेंट है और बहुत ही प्योर है. सोल्जर्स स्टिल फाइंड वॉर्स एंड द लॉयर्स स्टिल फाइंड लिटिजियस मेन टू सॉल्व द केसेस ऑफ द क्वेरल्स. इन दिस वे द पोएट वॉन्ट्स टू मेक क्लियर टू एवरीबडी दैट नोबडी इज affected by their love. Thus she and the poet love each other. वो ये कहना क्लियर, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, रेटोरिकल क्वेश्चंस, उनके थ्रू वो ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि मेरे लव से ना किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, कुछ दुनिया इधर से उधर नहीं हो गई है मेरे लव के वजह से. ठीक है. वो ये चीज बोल रहे हैं. इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज कॉल अस व्हाटएवर यू वांट. वो बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, वो बोल रहे हैं कि तुम जो चाहो ना वो बोलो मुझे. ओके. बिकॉज इट इज द लव विच मेक्स देम सो. क्योंकि लव जो है उसने उनको ऐसा बनाया है. द पोएट सेज कॉल हर वन एंड द पोएट हिमसेल्फ अनदर फ्लाई. देन ही सेज वी आर टेपर्स और कैंडल्स जिसे हम कहते हैं, टू विच डाइज बर्निंग एज इट्स ओन कॉस्ट. जो जलती है और डाई होती है, मरती है अपने खुद के कॉस्ट पे. देन द पोएट प्रेजेंट्स अ बिब्लिकल रेफरेंस. फिर पोएट जो है ना एक बिब्लिकल रेफरेंस प्रेजेंट करते हैं. एंड दे फाइंड इन देमसेल्व्स द eagle and the doe. It refers that love is both powerful as an eagle and gentle as a doe. वो बोल रहे हैं कि लव तो है ना दोनों है कि पावरफुल है ईगल की तरह और जेंटल है एकदम डोव की तरह. Then the poet gives another myth and says that their love is similar to phoenix riddle. फिर वो बोल रहा है कि हमारा लव जो है ना वो फिनिक्स रिडल की तरह है. बिकॉज इन एंशियंट ग्रीक folklore, phoenix is long-lived bird that cyclically born again. फिनिक्स जो है ना वो एक लॉन्ग लिव्ड बर्ड होता है जो साइकिल चलती है उसकी, वो मरता है फिर जिंदा हो जाता है. ठीक है. इट इज एसोसिएटेड विद द सन. अ फिनिक्स ऑब्टेन्स न्यू लाइफ बाय अराइजिंग फ्रॉम द एशेस. फिनिक्स जो है वो क्या होता है, एशेस से अराइज होके दूसरा बर्थ जो है वो लेता है. ओके. फिनिक्स बर्ड जो होता है. देन ही सेज दैट दो वी आर
टू डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, भले ही हम दो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं, बट स्पिरिचुअली वी आर वन, लेकिन स्पिरिचुअली जो है हम एक हैं, ठीक है। डज वी डाई एंड राइज एज द सेम फिनिक्स, तभी हम भी क्या होते हैं, फिनिक्स बर्ड की तरह हम भी मरते हैं और फिर जिंदा होते हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट आवर लव इज मिस्टीरियस, और यही रीजन है, यही कॉज है कि हमारा लव जो है ना वो मिस्टीरियस है, वो ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, हमने कितने स्टैंजास देख लिए इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने 3 स्टैंजास देख लिए। अब जो 4th और 5th स्टैंजा है वो, और जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोम में, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। So till then, take care, bye bye, and have a nice day. Thank you so much for watching this video.